Hello everyone. Welcome to e-learning of cooperations lecture. Okay. Till now we have started with first chapter. In that we learned about structure of managing committee. Right. We saw about members. Then we learned about managing committee. Yes. We are done with members. We are done with managing committee, and today we are going to start with third structure, that is office bearers. So, what are the office bearers? This is the new term you are learning. Office bearers means people which are appointed by the cooperative society. Okay, जिसको काम पर रखा गया है, they are known as office bearers. What जो भी लोग help करते हैं society को, people who are helping society, they are known as office bearers. Yes, who is appointed by कोऑपरेटिव सोसाइटी. कौन कौन अपॉइंट होता है सोसाइटी की तरफ से? लाइक चेयरमैन, यस, देन वाइस चेयरमैन, देन मैनेजिंग कमिटी, secretary. Yes, these are the people who are appointed by society, and these are the office bearers. These are the people, these are the authorities which help the work of cooperative society to be smooth. Yes, today we are going to learn about office bearers. Let's see what is office bearers. I told you people who are appointed by cooperative society are known as office bearers, which help society for day-to-day work. Yes, we'll learn in PPT now about office bearers. So, office bearer mean a person elected or appointed by society. Any officers such as such society, according to its bylaws, includes chairman, as I told you, chairman, vice chairman, managing committee, manager, secretary, treasurer, member of a committee. Yes, these are known as office bearers who help society to work smoothly. Okay. Again, I'm telling you, this includes chairman, vice chairman, managing committee, managing director, manager, secretary, treasurer, and members. The rules or the bylaws to give direction in regard to the business of such society. So let us start with the chairman. That who is the chairman? Yes, after the election of first meeting of the managing committee, one member is elected as chairman of CS. He is the chief authority of conducting and controlling the meeting of society. Chairman is a person empowered under the rules or the bylaws to give direction to regard the business of CS. Yes, as I told you, that out of members, some members are elected as managing committee, right? Suppose 100 लोगों में से 10 लोगों को 11 लोगों को मैनेजिंग कमेटी बनाया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया है. अब वो 10 लोगों में से कोई एक चेयरमैन बनेगा. ओके, मींस मेंबर्स में से आए मैनेजिंग कमेटी में से आए चेयरमैन. ओके, सो चेयरमैन इज अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी, इसके पास पावर है कोई भी डिसीजन लेने का. ही हैज अ पावर टू टेक डिसीजन, ही हैज अ पावर टू have any cancellation of membership, he can dismiss any person, he can approve the membership. It depends on the chairman के पास सबसे ज्यादा पावर होती है सोसाइटी में. ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट चेयरमैन. What is his functions and duties? To look after day-to-day administration. Administration means paperwork. जो भी पेपर वर्क होता है वो किसका काम है देखना? चेयरमैन का, कि बराबर से हो रहा है या नहीं वो काम. नेक्स्ट इज टू गाइड एंड हेल्प. यस, गाइड एंड हेल्प किसको करना? स्टाफ को, एम्प्लॉइज को, मेंबर्स को, मैनेजिंग कमेटी को. जहाँ चेयरमैन की हेल्प चाहिए, चेयरमैन की गाइडेंस चाहिए, वहां पर चेयरमैन ने हेल्प करना चाहिए. यस, नेक्स्ट टू मेंटेन कोऑर्डियल रिलेशनशिप्स. रिलेशंस, cordial means good relation.
healthy relation, we can say. Yes, to maintain good relation between members, between staffs, with the managing committee. Yes, अगर सोसाइटी का एनवायरमेंट हेल्दी होगा, द environment of society is healthy, then the work will be done in proper manner. अगर सोसाइटी का जो एनवायरमेंट है, जो माहौल है वो अच्छा होगा, तो काम भी अच्छा ही होगा. इसीलिए जो भी मेंटेन है, जो गुड रिलेशन है वहां पर होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपस में झगड़े चल रहे हैं, किसी के कोई आपस में बात नहीं कर रहा, तो ऐसे काम अटक जाते हैं. यस, टू अवॉइड दैट, इट्स अ ड्यूटी और फंक्शन ऑफ chairman to have good relation with everyone. Yes, next, to protect the financial interest of the members. Yes, to protect the financial interest means आपको पता है कि मेंबर्स अपना पैसा लगाते हैं एज अ शेयर कैपिटल कंपनी. सीएस में members invest their money as a share capital in society, so it is the duty of chairman to use that funds means to take decision in such a manner that that funds are used in profitable way. चेयरमैन ने ऐसे डिसीजन लेने चाहिए कि जो पैसा है वो हमारा वेस्ट ना हो, वो पैसे से हम और पैसा बना सके. ये किसका काम है? चेयरमैन का. कि मेंबर्स का पैसा, जो मेंबर्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जो मेंबर का पैसा है, वो ऐसे यूज करे कि उससे हमको प्रॉफिट ही हो, ऐसे डिसीजन ले कि उससे हमें प्रॉफिट ही हो. ओके, नेक्स्ट वन इज अरेंज मीटिंग्स. यस, सोसाइटी में बहुत सारी मीटिंग होती है. फर्स्ट जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग, जर्नल मीटिंग, स्पेशल जर्नल मीटिंग, ये सब कंडक्ट करना किसका काम है? चेयरमैन का. नेक्स्ट इज कंडक्टिंग मीटिंग. सेम, अरेंज मीटिंग, कंडक्टिंग मीटिंग. मीटिंग्स के बारे में जो भी ड्यूटीज होती है वो किसकी होती है? चेयरमैन की. Now we learn about powers of chairman. So what are the powers of chairman? Powers split into administrative work. As we learned in functions, first is that to look after administrative work. Here, powers of relating to administrative work means he has a power to see the books of accounts, to see the audit report. जो भी documents होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट सोसाइटी में होते हैं, वो सब देखना किसके पास पावर है कि वो चेक कर सकता है? चेयरमैन के पास. नेक्स्ट इज टू साइन द डॉक्यूमेंट्स. यस, वट एवर डॉक्यूमेंट्स आर देयर, वट एवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर देयर, चेयरमैन हैज पावर टू साइन इट. चेयरमैन के पास पावर होती है कि वो उसको साइन कर सकता है. देन रिलेटिंग टू अकाउंट्स. यस, कौन से अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, किसका कितना बिल हो रहा है, बिल्स चेक करना वगैरह सब किसका काम है? किसके पास पावर है? वो चेयरमैन के पास. To take action, fourth one is power to take action means कहीं पर कुछ गलत हो रहा है. If some mishappening is happening in the society, yes, कोई टाइम से नहीं आ रहा है, कोई एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, या किसी ने कुछ पैसे का कुछ करप्ट है, कोई मेंबर, कोई एम्प्लॉय, कोई स्टाफ, तो उसके अगेंस्ट एक्शन कौन ले सकता है? Chairman. He has the power to take action against any mishap. Okay. Then power relating to meeting. As you know, he has a power to conduct meeting, to arrange meeting. कब मीटिंग होनी चाहिए, उसमें क्या क्या डिस्कशंस होने चाहिए, ये सब किसके पास पावर है? चेयरमैन के पास. वेरी इंपॉर्टेंट सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज पावर ऑफ कास्टिंग वोट. ओके, कोई भी वोटिंग हो रहा हो, कोई भी इलेक्शन हो रहा हो, एनी इलेक्शन इज देयर, इफ देयर इज अ टाई, अगर वहां पर टाई होता है, सपोज 50-50 वोटिंग आते हैं, ओके, तो उस टाइम पे कौन वोट करेगा? चेयरमैन. यस, उसके पास ये पावर है कि अगर टाई होता है इलेक्शन में तो वो वोट कर सकता है वहां पर. ओके, और जो अगर टाई है, सपोज 50-50 है और चेयरमैन ने 50 वाले को, ए एंड बी both are having 50 votes. If chairman votes for A, अगर चेयरमैन ने A को वोट किया तो कौन जीत जाएगा? A जीत जाएगा. उसको कितने वोट्स हो गए? 51. यस, सो ही हैज अ पावर ऑफ कास्टिंग वोट. ओके, नेक्स्ट वन इज साइन मिनट्स. सी, मिनट्स क्या होते हैं कि जो भी मीटिंग में होता है, जो भी मीटिंग में डिस्कशन होता है, जो सेक्रेटरी होता है वो मिनट्स लिखता है कि आज मीटिंग में क्या क्या हुआ, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए.
वो एक लेटर पे लिखता है, राइट, और वो लेटर पे साइन करने का पावर किसके पास है? चेयरमैन के पास. ही हैज द पावर टू साइन द मिनट्स. ओके. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चेयरमैन. कंट्रोल. उसके पास पावर है कि वो जो सारे एक्टिविटीज है उसको वो कंट्रोल कर सकता है. नेक्स्ट इज टेक अप्रूवल. जो भी अप्रूवल होता है उसको वो ले सकता है. ओके. समटाइम्स द चेयरमैन हैज टू टेक डिसीजन इन अर्जेंसी. यस, उसको अर्जेंटली कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, उसके पास वो पावर होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी. Next is coordination. He has it is a responsibility of chairman to have good relation. As I told you, cordial relation means coordination होना चाहिए हर एक चीज में. Like communication in all the activities of members, staff, employee, authority, board of directors, office bearer, etc. ये उसका हर एक के साथ उसकी बननी चाहिए. किसी का झगड़ा उसका होना चाहिए क्या? नहीं. यस, सबका उसका अच्छे रिलेशंस होने चाहिए. ही शुड हैव गुड रिलेशंस विद everyone. Next is to sign the important documents. As I told you, he has a power, it is a responsibility of chairman to sign important documents. कोई भी डॉक्यूमेंट्स बिना साइन के आगे नहीं जाना चाहिए. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये चेयरमैन की. ओके. नेक्स्ट वन इज मीटिंग. यस, जो भी मीटिंग हो रही है सोसाइटी में वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी ही होनी चाहिए. ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ध्यान देना, चेयरमैन का. ओके. See, it is very easy about chairman. That's why we learned it so fast. Okay. Now, but vice chairman. Every corporate society appoints vice chairman to carry the work of managing committee in the absence of chairman. Yes. अगर चेयरमैन नहीं रहा तो उस जगह पे कौन काम करेगा? वाइस चेयरमैन. चेयरमैन नहीं है उसकी जगह कौन साइन करेगा? वाइस चेयरमैन. Vice chairman is elected from the directors or members of the managing committee. Yes, जैसे मैंने कहा members में से managing committee में से chairman और vice chairman. In the absence of chairman, the vice chairman acts as a chairman and he has all the powers of chairman. Yes, जो भी powers है chairman के पास, same power किसके पास होते हैं? vice chairman के पास. Okay. Now very much important about secretary. See, every year this question comes about ideal secretary, about qualities of secretary. It is very important topic. That's why I'm giving more time to this topic. Okay. Let's see the meaning of secretary. It is very important topic. Learn, try to learn it. If you have any doubt, please ask me. Okay. Secretary works differ according to type and size of cooperative society. सेक्रेटरी का काम सेम नहीं रहता, वो डिपेंड करता है कि सोसाइटी कितना बड़ा है, कंपनी कितना बड़ा है, कितना छोटा है. यस, अंडर सीएस एक्ट हिज अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी. यस, मैंडेटरी मीन्स होना ही चाहिए. इट इज कंपल्सरी कि सोसाइटी में सेक्रेटरी होना ही चाहिए. यस, ही मीन्स टू बी अपॉइंटेड ऑन फुल टाइम और पार्ट टाइम. वो फुल टाइम सेक्रेटरी भी हो सकता है या फिर पार्ट टाइम सेक्रेटरी भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ organization. It depends on the size of cooperative society that should we appoint the secretary for full time or part time. उसे कुछ टाइम के लिए रखना है. अगर छोटा छोटा हमारा सोसाइटी है, छोटा कंपनी है, तो सेक्रेटरी कुछ टाइम के लिए भी आए तो चलेगा, या फिर अगर बड़ा है तो उसको फुल टाइम रखना पड़ेगा. ओके. So let's see what are the functions of secretary. Administrative function. Yes, the secretary of a cooperative society has to look after office administrative and day-to-day work such as inward and outward correspondence. Correspondence means letters. Whatever letters are going out of society, whatever letters are coming in society, it is the work of secretary to look after it. Okay, correspondence means letters. Cash and bank transaction, receipts and payments of society means whatever administrative work is there about letters, about cash and bank transaction, receipts, payments, etc. He has to plan and coordinate the activities in office. जो भी activities होनी है वो कौन प्लान करेगा? सेक्रेटरी. जो भी लेटर्स वगैरह आएंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे बैंक से या फिर कैश के जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो पूरा रखना, हिसाब रखना किसका काम है? Secretary ka. Yes, he has to see the necessary books of accounts,
are maintained in the organization. Along with its maintenance, he has to see filling and preservation of all records of office. Yes, means जो भी पेपर वर्क है, जो भी रिकॉर्ड्स रखने हैं, वो किसका काम है देखना, सेक्रेटरी का. ओके, फाइनली ही हैज टू सुपरवाइज द वर्क एंड टेक केयर दैट द वर्क of society is being carried out smoothly and efficiently. Means whatever work is going in the society, whatever paperwork is going in the society, it is the duty of secretary, it is a function of secretary to look after it. Okay. Next one is maintenance of accounts and audit. The secretary has to maintain the account society, supervise the maintenance of accounts. He has to maintain what he has to maintain. See, bills, vouchers, passbook, etc. He has to see that cash book, receipt and payment, and income and expenditure account is prepared in a systematic manner. Yes, it is the duty of the secretary to look all the accounts are prepared सिस्टमैटिकली. जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे, बैलेंस शीट बन रहा है, जो भी अकाउंट्स बन रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो सब बराबर से बन रहा है या नहीं, किसका काम है देखना, सेक्रेटरी का. वो जो भी अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स है, जो भी लेन देन है पैसे का, वो सब किसका काम है देखना, मेंटेन करना, सेक्रेटरी का. ओके. He has to prepare the bank reconciliation statement. Along with this, he is also required to keep record of loans and advances, investment and details of creation of reserve fund. किसको पैसे दिए हैं, किससे पैसे लेने हैं, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ये सब किसका काम है देखना, सेक्रेटरी का. ओके. A secretary has to present budget before managing committee for consideration. Yes. जैसे हमने बात की कि जो रिकॉर्ड होते हैं पैसे के, वो सब किसके पास होता है, सेक्रेटरी के पास. उसके बाद वो रिकॉर्ड वो किसको दिखाता है, मैनेजिंग कमेटी को, कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, हमने कहाँ पर लोन लिया है, किसको लोन दिया है, कितने पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं, वो सब किसको बताएगा, वो मैनेजिंग कमेटी को. At the end of financial year, accounts of CS are to be audited both by internal and government auditor. Yes, जो भी अकाउंट्स होते हैं वो किससे चेक होते हैं एट द एंड, ऑडिटर. मतलब एक कंपनी का ऑडिटर होता है और एक गवर्नमेंट ऑडिटर होता है. जो गवर्नमेंट का बंदा आता है ऑडिटर, वो चेक करेगा, और जो कंपनी ने अपॉइंट किया है वो ऑडिटर, ये लोग चेक करेंगे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है. और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसने बनाया है, किसने ध्यान देके बनाया है, सेक्रेटरी ने. यस. व्हाइल ऑडिटिंग, इफ क्वेरीज आर रेज्ड बाय द ऑडिटर, क्वेरीज मींस कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कि ये पैसे कहाँ गए, इसका तो बैलेंस शीट में कुछ दिखाया नहीं है, तो वो कौन सॉल्व करेगा, उसके लिए आंसर कौन देगा, अकाउंटेंट, नो, सेक्रेटरी. सेक्रेटरी वहां पर आंसर देगा कि जो भी उनके डाउट होंगे ऑडिटर्स के. ओके. फाइनली ही हैज टू प्लेस ऑडिटर्स रिपोर्ट बिफोर जर्नल बॉडी फॉर इट्स अप्रूवल. यस. ऑडिटर ने जो, हम बोलते हैं ना कि टेस्ट के बाद रिजल्ट बना है, वैसे ही ऑडिटर हमारे कंपनी में आके सारे रिकॉर्ड, सारे अकाउंट्स चेक करते हैं, उसके बाद एक लेटर देते हैं हमें. ओके. रिपोर्ट देते हैं. तो वो रिपोर्ट हमें कहाँ पर दिखानी है, जर्नल बॉडी मीटिंग में. और जो मीटिंग होती है मैनेजिंग कमेटी वगैरह सबकी, वहां पर हमें वो लेटर, वो रिपोर्ट दिखाना है. वो किसका काम है दिखाना, सेक्रेटरी का. नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस. अकॉर्डिंग टू TS Act, the secretary has to maintain various statutory books such as members register. Yes, अलग अलग statutory books मतलब पेपर वर्क की बुक. ओके. क्या क्या रखना पड़ता है, मेंबर, स्टैट्यूटरी बुक्स मींस वी कैन से जो रिकॉर्ड हमें गवर्नमेंट को दिखाना है, ऑफिशियल और लीगल, लीगल नहीं, ऑफिशियल बुक्स जो पब्लिश मींस जो लोगों को जाएगी, रजिस्ट्रार के पास जाएगी, चेयरमैन के पास जाएगी, देन ऑडिटर को दिखाया जाएगा. ये सब करना भी किसका काम है, सेक्रेटरी का. क्या दिया यहाँ पे, मेंबर्स रजिस्टर मींस कौन से मेंबर्स हैं हमारे पास, मेंबर्स से क्या क्या नाम है, मेंबर्स रजिस्टर, शेयर रजिस्टर, कितने शेयर्स कहाँ पर इन्वेस्ट हुए हैं, कितने शेयर्स बिके हैं, कितने नहीं बिके, वो सब ये रजिस्टर में होंगे. रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर, कितने लोगों ने पैसे डिपॉजिट किया है, इसके अलग अलग रजिस्टर होते हैं, वो सब मेंटेन करना किसका काम है, सेक्रेटरी का. The secretary has to produce the statutory books at the time of audit work. Yes. ये सब उसे कब दिखाना पड़ेगा, जब ऑडिटिंग होगी, चेकिंग होगी सर रिकॉर्ड्स की, उस टाइम पर. ओके. At the end of financial year, he has to fill annual return while the registrar within 45 days from the close of
the financial year. Yes. Annual return means income tax return. ओके वो सब भी फिलअप करना किसका काम है? सेक्रेटरी का. ओके नेक्स्ट इज फंक्शंस टुवर्ड्स द मीटिंग्स. यस व्हाट फंक्शंस secretary having towards meeting? It is given in the bold letters. Prepare notice, agenda and all necessary papers. Yes. Notice means members को notice आया कि suppose कि 30 सितंबर को मीटिंग है, तो वो नोटिस कौन प्रिपेयर करेगा? मेंबर्स को कैसे पता चलेगा कि 30 सितंबर को मीटिंग है? वो कौन बताएगा? सेक्रेटरी. कैसे बताएगा? थ्रू करस्पॉन्डेंस मींस थ्रू लेटर्स. लेटर्स में क्या लिखा होगा? नोटिस होगा कि 30 सितंबर को मीटिंग है, कहाँ पर है, कितने बजे है, कितना टाइम चलेगी. एजेंडा मींस वो नोटिस में देना है एजेंडा. एजेंडा मींस कितने टाइम उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा. व्हाट विल बी डिस्कस्ड इन दैट एजेंडा. Okay, what discussion will be there, what topics will be there, that should be given in agenda. It is the duty of secretary to prepare that agenda and all necessary papers, documents before the meeting and submit the same to the concerned person well in advance. Yes, मीटिंग के बारे में जो भी डिटेल्स है, नोटिस भेजना है, एजेंडा भेजना है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सब देखना किसका काम है? सेक्रेटरी का. ड्यूरिंग द मीटिंग ही हैज टू सी द कोरम इज प्रेजेंट. Yes, quorum means suppose 49 members are there. 49 members को हमने लेटर भेजा है, नोटिस भेजा है मीटिंग का 30 सितंबर के. वी हैव सेंडेड नोटिस फॉर 30 सितंबर्स मीटिंग टू 49 members. So quorum means we can say strength. हम बोलते हैं ना क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 120, 60 मीन्स स्ट्रेंथ कितनी है, जनसंख्या बोल सकते हैं. तो कोरम मीन्स जैसे इंडिया के हम बोलते हैं जनसंख्या, राइट, पॉपुलेशन, कितने लोग हैं. तो वैसे ही कोरम मीटिंग में कितने लोग, उसको क्या बोलते हैं? कोरम. कोरम मीन्स हाउ मेनी पर्सन शुड बी प्रेजेंट देयर. ओके, कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए? कम से कम सपोज के 60 लोग हैं, 60 लोगों को हमने नोटिस दिया है. आउट ऑफ 60 एटलीस्ट 49 पीपल शुड बी प्रेजेंट. तो कोरम कितना है? 49 पीपल. कम से कम 49 लोग होने चाहिए. तो ये किसका काम है देखना कि 49 लोग प्रेजेंट है या नहीं? सेक्रेटरी का. ओके, he has to assist the chairman at the time of conducting voting. He has to take down the notes of proceeding of the minutes. Yes, जैसे मीटिंग, सॉरी, जैसे मैंने कहा था कि जो भी होता है मीटिंग में वो सब लिखता है कौन? सेक्रेटरी. की क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या डिसीजंस लिए गए, वो सब नोट्स बनाना किसका काम है? सेक्रेटरी का. आफ्टर द मीटिंग ही हैज टू ड्राफ्ट द मिनट्स विद इन 30 days एंड गेट इट साइंड फ्रॉम चेयरमैन. मीटिंग के बाद 30 दिन तक उसको वो मिनट्स साइन करवा लेने चाहिए. किससे? चेयरमैन से. ओके, नेक्स्ट इज फंक्शन टुवर्ड्स द मेंबर्स. सेक्रेटरी हैज टू आंसर द क्वेरीज मींस डाउट, जो भी कंप्लेंट्स होगी मेंबर्स की, वो सब किसने सॉल्व करने चाहिए? सेक्रेटरी. एग्जाम्पल, receive applications of membership, application of transfer of shares, etc. Before annual general meeting, he has to send copies of notice, financial statement and annual reports to all members. Yes, ये सब भेजना किसका काम है? सेक्रेटरी का. किसको? मेंबर्स को, राइट. Function towards managing committee. The secretary has to carry out instruction given by the managing committee and execute the policy decisions. He attends the meeting and of managing committee and communicate the decision of managing committee to concerned parties. Yes, वो मैनेजिंग कमेटी का जो भी डिसीजन लिया गया है वो उसको एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट कौन करता है? सेक्रेटरी करता है. मतलब उसको जो डिसीजन हमने लिया है, सपोज कि 30 सितंबर को सब लोग 10 बजे आ जाएंगे मीटिंग के लिए, तो 10 बजे का नोटिस सबको भेजना है. किसका काम है? वो सेक्रेटरी का. यस, वो मीटिंग अटेंड करता है मैनेजिंग कमेटी की और जो भी डिसीजन है वो बाद में बाकी लोगों को बताता है कि ये डिसीजन लिया गया है, हमको इसके अकॉर्डिंग काम करना है. ओके, इट इज अ फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी टुवर्ड्स मैनेजिंग कमेटी. ही असिस्ट्स द चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स and the members of managing committee from time to time and tries to fulfill the goals of society. So बार बार हेल्प लेता रहता है, बातचीत करता है चेयरमैन से, मैनेजिंग कमेटी से, और फिर जो भी डिसीजंस निकलते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करता है. He keeps proper coordination between staff and managing committee. Yes, very important
very much important. It will surely come in your exam. Qualities of an ideal secretary. It is very much important. Okay. First is pleasing personality. The secretary should have pleasing personality, means अच्छी personality. ऐसा नहीं कि सुबह उठ के बस आ गया, कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं, कुछ फ्रेश नहीं लग रहा है, चलेगा? ऐसा नहीं, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो बहुत लोगों से मिलता है. यस, ही इज इन कॉन्टैक्ट विद डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज एंड अदर आउटसाइडर्स. यस, किससे किससे कॉन्टैक्ट होगा? डायरेक्टर्स से, एम्प्लॉयज से, बाहर के कुछ लोग आते हैं उनसे. हेंस ही शुड हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी. ही शुड बी वेल ड्रेस्ड, पंक्चुअल मीन्स टाइम से आना चाहिए, पेशेंस सबर होना चाहिए उसमें, फॉर लिसनिंग टू अदर्स एंड फॉर्मल. यस, अच्छा होना चाहिए वो, उसमें क्षमता होनी चाहिए सामने वालों को सुनने की. यस, ही शुड ऑल्सो हैव द क्वालिटी टू इम्प्रेस अदर बाय व्यूज एंड बिहेवियर. यस, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसको देख के लोगों को अच्छा लगना चाहिए. ओके, so this is the first quality that the secretary should have, that is pleasing personality, good personality. Next is imaginative. A secretary should be imaginative and efficient for using technological tools and intellectual skills for achieving the target. जो भी सेक्रेटरी होता है उसको इमेजिनेटिव, कुछ नया सोचना चाहिए हमेशा. ओके, इंस्टीट्यूशन वर्क शुड बी कंप्लीटेड इन एन इकोनॉमिक वे एट द राइट टाइम. कम पैसे में काम होना चाहिए सही टाइम पर. ओके, अब वो कम पैसे में काम सही टाइम पर कैसे करना है, किस पर डिपेंड करता है? सेक्रेटरी पे, कि वो क्या क्या चीजें यूज कर रहा है, किस तरह से वो अपना प्लान कर रहा है. ओके, ही ऑल दिस वर्क डिपेंड्स ऑन सेक्रेटरी इंटेलिजेंस एंड क्वालिफिकेशन. ये सब किस पर डिपेंड करता है? सेक्रेटरी के इंटेलिजेंस पे और क्वालिफिकेशन पे, कि वो किस तरह से काम कर रहा है, कैसे कम पैसे में ज्यादा काम कर रहा है वो. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल. The secretary comes in contact with employees, actors, members, society, and other person. That is why he should be able to express his views clearly and confidently before others. It is necessary for him to possess good communication skill. Yes, he is in contact with many people, so he should have good communication skill. He should know how to attract people. He should know how to manipulate people. He should know how to deal with people. That's why he should have good communication skill. Next is business knowledge. He should have complete business knowledge so that he can provide techniques or services for that. Secretary should have complete knowledge of business techniques and services that are provided by the society. उसको पूरी knowledge होनी चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स अपनी सोसाइटी में यूज होता है, क्या क्या सर्विस अपनी सोसाइटी में यूज होती है. ओके, नेक्स्ट इज लीगल नॉलेज. ही शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल द लॉज. सारे लॉज, सारे कायदे कानून के बारे में सेक्रेटरी को नॉलेज होना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, administrative work. Secretary has to look after day-to-day administrative work, so he must have administrative knowledge. Means he should have all the paper knowledge. Okay, next one is initiative. For the implementation of any work, a person should have basic plan or and skill to gather people, and for that he should have initiative mind and enthusiasm. Yes, मीन्स लोगों को जमा करना होता है, मेंबर्स से बात करनी होती है, मैनेजिंग कमेटी से बात करनी होती है, तो उसके लिए उसका इनिशिएटिव माइंड चाहिए, मतलब कुछ नया सोचने का माइंड चाहिए, खुद उसने आगे बढ़ के कुछ काम करना चाहिए. ओके, देन पब्लिक रिलेशन. सेक्रेटरी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ नंबर ऑफ पीपल इन हिज डे टू डे वर्क. He has to meet various people and discuss with them. Hence, he should have good communication skill. He should be cooperative and open-minded with others. In short, he should have quality of maintaining good public relation. उसने हर एक से अच्छे से बात करनी चाहिए, उसकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, उसने हर एक को अट्रैक्ट करना चाहिए अपने बातों से. यस, तभी सोसाइटी का काम बनेगा, मतलब उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए लोगों से. ओके, देन ट्रेजरर. हमने पढ़ा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी. अब ट्रेजरर क्या होता है? ट्रेजरर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिस बियरर ऑफ सोसाइटी. The treasurer is a person who is responsible for maintaining accounts and financial transaction of the society. जो भी पेपर अकाउंट्स बनते हैं वो कौन बनाता है? ट्रेजरर. He signs profit and loss account and balance sheet of CS.
He looks after bank transaction. Uh, his main function is to check the bills, receipts, and check for income and expenditure of cooperative society. He is the person who is doing all this job. He is checking the bills, he's checking the receipts, then he's checking the checks, income and expenditure accounts, he's signing the profit and loss account and balance sheet. He is treasurer. Okay. Here we finished with the PPT. Yes. So today we learned about office bearers, right? What are the office bearers? Chairman, vice chairman, secretary, and treasurer. Yes. Very important was secretary. About secretary, question comes every time, and this time also question will come about secretary. The main topic is qualities of ideal secretary. It comes every year. It is very important. If you have any doubt, children, please ask your teachers. Okay. So students, stay home and study.